Today, I want to talk about there are only two kinds of parents. That's it. I know आपने बहुत सारी attachment theories पढ़ी हैं, dissociative attachment style, disattachment style, डा 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 डा, ऐसी parenting, वैसी parenting, दिमाग खराब हो गया है ना पूरा. हाँ, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि spiritually there are only and only two kinds of parents. Let's get into it. Let's find out which one you have. Okay. So first kind of the parent. Okay. Just take it like this. It's a scale. Scale is divided into two. यहाँ पे है 0. यहाँ पे ये 100. यहाँ पे ये भी 100. Okay. 100 minus 100. Okay. 0 से 100 and 0 से minus 100. Okay. 0 से 100 की कैटेगरी जो है उसको कोई टर्म नहीं है, but these are the conscious parent I would like to call it. And this 0 to minus 100, it's unconscious parent. We don't do conscious parenting. Okay. Now, these parents, the first kind, let's talk about the conscious one. जब से बच्चा कंसीव होने से भी एक्चुअली इवन पहले से they are very conscious about this whole act, right? That who are we, why we are married, are we comfortable in this marriage, does this marriage have space for a kid, have we made sure, do we have the resources, do we live in a safe neighborhood, have we moved to a neighborhood where there are good, I don't know, good schools, good community, so we can think about having a family. Are we really done with our this honeymoon romantic period? Are we both comfortable rearing a child? Let's see about that, right? And a lot of it has to do with the woman. If she does not feel comfortable, it's off. It's as simple as that. Okay. It's not like she's not comfortable, तो उसको convince करेंगे, comfortable बनाएंगे. Her lover will not allow even you to do that, right? Provided she has a lover, and she has to have a lover. That's when this conscious parenting can even happen, right? We need the lover with his love, and then they create a child. Okay, so this is the conscious parents before scene. Now let's go to the unconscious parents before scene. They do not give a fuck that क्या है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ है नहीं है, मिट्टी के घर में नीचे पड़े हैं, बच्चे पैदा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको करना है सेक्स, राइट? और हम एक कॉन्डम भी नहीं ले सकते, हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे बिकॉज हम तो कहीं के राजा हैं. ये नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ सोचने वाले हैं. एंड ये औरत मोस्टली शी ऑल्सो डज नॉट नो हर वैल्यू, शी डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ हर वूम, what kind of life will it will become for their kid if kid comes out in a circumstance like this. And this man is egoistic as hell. He cannot also take anything, less than that. Unprotected sex is his right? So इस तरीके से सोचने वाले बददिमाग मर्द और बददिमाग औरत के साथ क्या होने वाला है? अनकॉन्शियस पेरेंट्स बनने वाले हैं ये, राइट? सो दे विल जस्ट, दैट्स वाई वो हम ऐसे ही नहीं होता है, राइट? कि मजदूरों के 5-5 6-6 बच्चे घूम रहे हैं, और रिच पीपल आर इवन थिंकिंग अबाउट bringing one child here or not, right? And these people will be telling, ये लोग सोचते बहुत है, ये लोग ऐसे हो जाते हैं, बच्चे तो ऐसे पैदा हो जाते हैं, बच्चे से बड़े हो जाते हैं. तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है भाई? मुझे पता है ना, मैं थेरेपिस्ट हूँ ना उनकी, मुझे पता है तुम्हारे बच्चे किस हाल में आते हैं मेरे पास फिर वो, राइट? कई तो पहुँच भी नहीं पाते, इतना भी नहीं पहुँच पाते कि वो थेरेपी भी अफोर्ड कर पाए आज के टाइम में भी, तुम्हारी वजह से, राइट? सो दिस इज़ द बिफोर सीन फॉर दिस अनकॉन्शियस. दे डोंट गिव अ फक कि कोई स्कूल है कि नहीं है, कौन सा एरिया है, ये एरिया सेफ भी है कि नहीं, दे नॉट इवन प्रिपेयर्ड. अगर गर्ल चाइल्ड हो गई या फिर ऐसा कोई चाइल्ड हो गया, विच इज़ डिसेबल्ड ऑन सम वे, तो इनको करना क्या है? इनको कुछ नहीं पता है इनको क्या करना है. इनको बस अभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना है, बच्चा हो जाएगा तो ये देखी जाएगी, जब हो जाएगा तो देखी जाएगी, राइट? नहीं हुआ तब तक तो सब ठीक ही है, और जब हो जाएगा कर लेंगे कुछ, उसको भी यहीं डाल देंगे जहाँ हम डले रहते हैं, क्या करना है, right? So these are the unconscious. Of course, that's why I told you 0 to minus 100. So not like every parent has to be at this minus 100 level that I'm explaining, right? So, and not everybody has to be at that 100 also that I'm explaining. Somewhere they will lie in this scale. Somewhere they'll be at minus 50 or plus 75, wherever. You name it. How it was at your house, right? So that is there. So, but the kind are only two. अब इसमें आप देख लो कौन सा स्केल पे किधर क्या नंबर एग्जैक्टली आता है, वो आप देखो, राइट? देन अगेन लेट्स गो टू द प्रेगनेंसी सीन. ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी comes as for these people like a blessing. We were trying, we had made all the preparations, so finally now this is happening, yay, excited, like we can even take a vacation for it, and पूरा
उस हिसाब से अरेंज करते हैं, खुशी का टाइम है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट, दे आर डूइंग जेंडर रिवील एंड वॉट नॉट, राइट, एंड हेयर प्रेगनेंसी विल कम लाइक अ बर्डन, बिकॉज मोस्टली इन घरों में दोनों की ज़रूरत होती है पैसा कमाने के लिए भी, बिकॉज ये इतने वेल टू डू होते नहीं है। इतना दिमाग होता तो वेल टू डू होते, दिमाग नहीं है तो वेल टू डू भी नहीं होते हैं यूजुअली ये लोग। और अगर वेल टू डू भी होते हैं इतने अनकॉन्शियस लोग भी, प्रेगनेंसी भी तब भी अच्छी नहीं जाती है, क्योंकि टॉक्सिक लोगों से सराउंडेड होते हैं। पैसा सब कुछ आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है, कुछ चीज़ों के लिए दिमाग भी लगेगा, राइट। सो इफ़ यू डोंट हैव दैट, देन व्हाट हैपन्स, दीज पीपल are surrounded with toxic people, a lot of politics and games are happening, बच्चा ये सब सुन रहा है, देख रहा है, बच्चा लग रहा है भाई मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ये तो घर मुझे ऐसे ही ठीक नहीं लग रहा है, राइट। और इस तरीके का प्रेगनेंसी सीन है। अगर जैसे लेबर वगैरह जैसे अगर उनकी कोई लाइफ होती तो औरत उस टाइम पे भी ईंटें धोती है, जब वो प्रेग्नेंट है तो भी वो धोती, जब तक उसका हर वाटर विल नॉट ब्रेक, लाइक तब तक वो करती रहेगी काम। वो जब बेहोश होकर गिर जाएगी तब उसको आपको हॉस्पिटल ले जाके उसका प्रसव कहते हैं जिसको चाइल्ड बर्थ करा देगा, राइट। ये लाइफ होती है यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन की, क्योंकि इतने ही कॉन्शियस कपल हैं ये लोग, इतना ही कॉन्शियस पेरेंटिंग ये करने वाले हैं, राइट। बट यहाँ पे एवरीथिंग इज लाइक इन चेक, एवरीथिंग वी समटाइम्स इवन इन दिस केसेस वी आर लाइक ऑलरेडी मेड श्योर कि भाई ये हॉस्पिटल रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, ये पर्सन को रखेंगे और हस्बैंड इज ऑलवेज हियर, कुछ भी होगा बैग इज पैक्ड, गेट देयर, राइट, इट्स ऑल सॉर्टेड। सो प्रेगनेंसी इज ऑल्सो great here and here. It's like how do I say, a journey I would not want anyone to take. Okay, now coming to the third part, बच्चा पैदा होने के बाद क्या होता है। These people, conscious one, are prepared for everything. They're like, हाँ, if this is there, that's there. Okay, this is what we are going to do. We thought about it, we planned about it. Right, डॉक्टर से डिस्कस कर लिया, सबसे बात कर ली, सारे काउंसलर गाइड, एंड देन चेक विद themselves also. Okay, what is that we want to do, and then come at a mutual point with which everybody is happy, and then they go ahead with that, whatever kind of baby they end up having, right. Here they were mostly just prepared for a boy, right, जिससे उनको दहेज मिलेगा, right, especially when this happens in India and outside also, because क्या है, एक मर्द ज़्यादा जॉब कर सकता है, राइट। सो ये जो सर्वाइवल से मोस्टली लोग आते हैं वही लोग ये अनकॉन्शियस पेरेंटिंग में होते हैं। इनको अपना, जैसे अगर कोई इनके पापा अगर बिजनेस में भी हैं तो इनको चाहिए कि इनका बेटा वो हो जो कि आगे जाके इनका बिजनेस संभाल ले, राइट। तो बेटी पैदा होने पे इतना ज़्यादा खुशी नहीं होते, राइट। दे आर नो वे प्रिपेयर्ड फॉर अ डिसेबल्ड चाइल्ड होने पे तो दे लाइक मिस हो गया ये तो, ओफो क्या करें, कहाँ फेंका है, क्या कर दें इसका, राइट। तो पूरा नीरस ही हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। बट दैट इज ऑल्सो अनदर वे। आई ऑलवेज टेल every fucking thing happens here on earth to teach you a lesson that you need to learn. Disabled kids are also part of the lesson, even if you don't like the sound of it, but they come here to teach you maybe what, I don't know, patience, they come here to teach you grace, they come here to teach you that a human is beyond just all working limbs and all working systems. We can be disabled or specially able, we call as in today's time, and at the same time teach you stuff, experience life, right, bring a certain kind of energy in the house. We can do that, but इन लोग में इतनी मेच्योरिटी नहीं है चीज़ समझने की, तो ऑफ कोर्स इनके घरों के डिसेबल्ड बच्चे या तो छोड़ दिए जाते हैं, हट जाते हैं, राइट, उनका ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको पूरे तरीके से ट्रीट करते हैं कि इवेंचुअली वो मर ही जाए, राइट, खुद से ही मर जाएंगे, मारने का दम नहीं है, या तो कई बार होता भी है, मार भी देते हैं, राइट। सो दिस द काइंड ऑफ हैपन्स हियर। एंड इफ अ वुमन इज लाइक बॉर्न, देन दे लाइक यार शी वाज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस, बंदा हो जाता तो ज़्यादा सही रहता, अब इसको कहाँ काम पे लगाएंगे, इसको फालतू में सेफ भी रखना पड़ेगा, इतना तो सेफ हमारा नेबरहुड ही नहीं है, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कहाँ से होगा, राइट। सो दिल भी लगा यार सर दर्द हो गया, ये क्या हो गई, हमें बला पैदा हो गई, क्या करें यहाँ पे इसका, तो इसका भी कुछ ठिकाना लगाया जाएगा, कुछ किया जाएगा। कई केस में मार दिया जाता है, कई केस में कहीं भेज दिया जाता है, कई केसेस में उसको घर के काम में लगा दिया जाता है कि भैया इससे बचपन से ही ना इससे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलवाएंगे, इससे क्या करें, दहेज तो ये ला नहीं पाएगी, उल्टा सारा लेके भी जाएगी क्या पता, राइट, इसका शादी कौन करेगा, इसको घर के काम में लगाओ, इसका कुछ ध्यान नहीं रखेंगे इसको। मैंने कितने सारे क्लाइंट्स में देख लिया अभी तक, पता है इंडिया में, मुझे लगता था इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है, बट आज भी किसी के घर में लड़का लड़की पैदा होते हैं, दोनों अलग तरीके के स्कूल में जा रहे हैं, राइट, क्योंकि लड़की पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, बिकॉज उसका रिटर्न नहीं आने वाला है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ पेरेंट्स विच डोंट इवन गेट पेरेंटिंग आर हैविंग किड्स, ओके। सो दिस इज दिस सिनेरियो। अब इस घर में बच्चा आगे बड़ा होगा तो कॉन्शियस पेरेंट्स विल बी लाइक ओके, बच्चे का एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे वो, मतलब कि जैसे कि उसका बर्थ डेट क्या था, उसका क्या ये सब चीज़ें थी, तो उसको लेके जाना अच्छे हीलर के पास, या
अच्छे रीडर के पास, कि भाई अच्छे काउंसलर के पास, करियर काउंसलर के पास, कि कौन से सब्जेक्ट्स इसको लेने चाहिए। पीटीए मीटिंग में दोनों लोग आके अटेंटिवली सुनेंगे एंड अंडरस्टैंड कि ओके बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या किसी तरीके से हम असिस्ट कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं, हम क्या बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए, बिकॉज इनको फिक्र है कि कल को इनका बच्चा इनके बिना कैसे रहेगा, right? They want to give everything that they have got, their resources, their energy, their willpower, self, so this kid can shine in the world. They are ready to do that for this child. And then on the other side, look at this one. They are ready to take everything from the child so they can shine. जैसे ये पेरेंट्स विल बी लाइक, मेरा बच्चा क्या एक्चुअली करना चाहता है, मेरे बच्चे की क्या इच्छा है, मेरे बच्चे को पियानो पसंद है, पियानो ला देंगे, पियानो सीखेगा, पियानो करना चाहता है, ठीक है पियानो इट इज़। कल को उसको आर्ट पसंद है, क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड है, ये भी करना चाहता है, ओके, बिकॉज ये टाइम है एक्सप्लोर करने का। ऐसे ही तो उसको पता लगेगा कि वो करना क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है। लेट हिम हैव हॉबीज, राइट? एंड दीज विल बी लाइक, इतना और पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ पे पैसा लगेगा भाई, इतना जगह पैसा नहीं हम लगाएंगे तेरे ऊपर, राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट। एंड दे विल बी लाइक, ये एग्जाम क्रैक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ताकि आई कैन परेड यू आउट देयर लाइक इन द सोसाइटी, कि देखो मेरा बच्चा तो ये, बिकॉज आई एम नो शिट। सो मैक्सिमम थिंग आई कैन ब्रैग अबाउट इज वॉट माई किड इज, because I'm no shit, I know that, world knows that, right? But I can at least parade my kid around like this, that मेरा kid तो बहुत pro निकल गया ना। तो वो like a lot of time, like even I belong from this category, sadly, unfortunately, whatever you say, but I belong. And my parents like used to, first of all, they didn't have a plan for me, okay, and then I had to make a plan for myself. And today when somebody says that, oh, your daughter is a psychologist, she has a regular client, nice, she's earning just from that, nice. And they'll be like, yes, we made her a psychologist. And I'm like, just put that down your nose. You made me a psychologist. I remember how what your plans were for me. Their plans were for me was just को सस्ती से डिग्री कराओ, जल्दी से शादी कराओ, फुटाओ ऐसे यहाँ से, अगली बेटी का नंबर लगाओ. That's maximum my plan. My parents' plan was for me. It's me who planned this for myself, like step by step. Yes, definitely they gave money for that. I could get that out of them. गधे को बाप बनाना पड़ता है मुश्किल के टाइम में. मुझे वहाँ से निकलना था, एक ही रास्ता था, education and money, getting that power, getting a job. And yes, I did that for that, because इतने साल इतना सब उनकी मार पीट खाने के बाद I had to make a return. I had to get out of that, right? So yeah, so I got them all those things. I got all those things from them and got out of this. This is how I play. Anyways, and I believe every kid, which is not happy in a household like this, गधे को बाप बनाओ, वहाँ से निकलो पहले किसी तरीके से, then flip the switch. Anyways, now this kind of the parents, they will not be giving a fuck about आपकी PTA मीटिंग. मेरे पापा PTA मीटिंग में आके पूछते थे, तुम कौन सी क्लास में हो, 4th, 5th, 6th, पता नहीं, बिकॉज व्हाट, कुछ आइडिया नहीं है. मेरी एज नहीं उन्हें पता होती थी. अभी कोई पूछ दे एकदम से ना कि वो व्हाट इज योर एज एग्जैक्टली, इतने साल में हुई थी पैदा तो कितना होगा, पता नहीं कितना एज है, क्या है नहीं पता, फेवरेट कलर, खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, कुछ नहीं पता, राइट? सो these parents don't care about you, they care about themselves. They're like, how is that you can help me, because you're my return on investment, right? मुझे कुछ दे के जाओ, मैं मरूँ उससे पहले मुझे कुछ दे के जाओ. क्या दे के जा सकती हो तुम, मुझे कितना पैसा दे सकती हो? They still take money from my sister, right? तुम मुझे कितना पैसा दे सकती हो, अगर कमा दिया हमने, तुम में कितना लगाया है, right? They will count all that, but these parents will be like, that's exactly what I was supposed to do. I'll tell you a few things now. Like Priyanka Chopra की mom, and then recently I forgot the name again, जो chess का champion बना है, जो इंडिया से है, right? Grandmaster and all, whatever. So both parents were interviewed, not together, but they were two different interviews. And Priyanka Chopra's mother says that कि मैं जब तक प्रियंका चोपड़ा comfortable नहीं हो गई थी सेट पे, तब तक मैं उसके साथ हर सेट पे जाती रहती थी. तो इंटरव्यूअर वाज, आई थिंक रूबीना वाज द इंटरव्यूअर. शी सेज दैट आपने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, अपनी जॉब छोड़ के आप उसके साथ जाती थी. शी सेज सैक्रिफाइस, एक पेरेंट का काम ही यही होता है. सो व्हाट सैक्रिफाइस यू टॉकिंग अबाउट? आई लव दैट बिकॉज आई नेवर हैड दैट. आई लव दैट. एंड देन दिस चेस ग्रैंड मास्टर, उसके केस में उसके फादर भी वेरी सिमिलर थिंग ही सेज इज, पीपल से दैट कि आपकी वाइफ तो अभी भी काम कर रही है और आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बेटे को टूर्नामेंट में लेके आ रहे हैं, आपने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया. ही से सैक्रिफाइस इज अ वेरी हेवी वर्ड. प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दैट, बिकॉज इट्स माई सन, एंड इफ माई सन इज सो टैलेंटेड,
इट्स माई ऑनर कि मुझे पहली बात तो ऐसा बेटा मिला। अब इसके लिए मैं अपना काम छोड़ के इसको टूर्नामेंट भी नहीं ले जा सकता, तो फिर तो मेरे पे ही मतलब लाइक मुझ में ही कुछ दिक्कत है फिर तो। ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, वॉट एल्स अ पेरेंट इज सपोज टू डू व्हेन दे आर गेटिंग ए चाइल्ड के गिफ्ट देखो और उसके हिसाब से चाइल्ड को सपोर्ट करो। यही तो हमारा काम है। वाई एल्स वी गॉट देम इन लाइफ? जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ दीज टू पेरेंट्स थिंक। एंड देन देर आर दोज पेरेंट्स विच विल लाइक तो अपने कजन जितना पैसा नहीं कमाते, तुम उसके जैसा वो एग्जाम नहीं निकाल पाए, उसका तो कैट में इतना अच्छा नंबर आया तुम्हारा नहीं आया, उसने तो ये एग्जाम क्रैक कर लिया तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। वॉट यूजुअली इन पेरेंट्स से भी घंटा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। एंड दे जस्ट वॉन्ट यू टू क्रैक ऑल दोज थिंग्स सो दे कैन परेड यू एवरीवेयर। मेरा बच्चा तो इसमें है, मेरा बच्चा। तुम कौन हो भाई? तुमने कुछ कर पाया अपनी लाइफ में? नहीं ना, तुम तब भी लूजर ही हो। तुम्हारा बच्चा चाहे आईएएस का प्रेसिडेंट भी बन जाए तो भी तुम लूजर ही हो। सो क्योंकि तुमने नहीं बनाया है। दिस इज द डिफरेंसेस हेयर। द किड्स बॉर्न फ्रॉम दिस साइड दे विल से आज मैं जो भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ, और सच भी है इनके केस में, राइट। एंड दिस किड्स विल से व्हाट एनी गेसेस? They will say whatever I am in spite of my parents. It's because my parents did everything to stop me. My parents did everything so they could make me all about them. My parents did everything. They can just use my resources, use my money, use my knowledge, use my talent, use me in their household chores and everything. They could just take everything out of me. So they don't give a fuck how I will be after they're dead. They cannot care about that. They never did from the day one. Okay, they only care about themselves. They're those selfish people which are actually never supposed to be parents. But what to do? सेक्स के आगे तो किसी के आगे कोई यहाँ पे कोई गेट तो लगा नहीं कि आप दो लोग नहीं कर सकते। कर रहे हैं यहाँ पे, बेवकूफ लोग ज्यादा कर रहे हैं, राइट। सो these people became parents. That's how it happened, right? And what now these people will be like giving rise to these kids, and kids will be like आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं अपनी वजह से हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से हूँ। और ये लोग वो हैं जिनकी वजह से पॉसिबल था कि मैं नहीं बन पाता। दीज आर दी ऑप्स, दीज आर द पीपल। ये इनकी वजह से मैं शायद यहाँ जरूर पहुँच नहीं पाता, ये हो सकता था, पर मुझे यहाँ पहुँचाने में सिर्फ मेरा और कई बार हमारे हीलर्स का, मेंटर्स का, टीचर्स का, हमारे फ्रेंड्स का, इन सब का साथ रहता है, सपोर्ट सिस्टम का साथ रहता है, राइट। इनका बिल्कुल साथ नहीं रहता है। These were always the enemies. They were always against you because they wanted to use you for themselves. They don't care कल को ये मर जाएंगे तो आपका क्या होगा। इन्होंने पूरा आपका सब चूस लिया ना, पूरा रस सारा ले लिया ना आपसे। कितना पैसा ले सकते थे, कितना सब ले सकते थे, इन्होंने अपना मस्त बना लिया ना, बुढ़ापा और आगे सब मस्त। अभी मैं मर रहा हूँ, तुम्हारा जो भी हो भगवान जाने। मैंने कौन सा तुम्हारी पहले दिन से केयर करी थी जो मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा मैं मरने के बाद तुम कैसे रहोगे। मैं जिंदा में तुम्हारी केयर नहीं करी, मरने के बाद तो तुम जलो मरो, मेरे को क्या है। दीज आर दोज पेरेंट्स। लर्न टू नो द डिफरेंस विच वन यू हैव। It's gonna cost your life otherwise if you don't. Like, I know, triggering video, but which video of mine is not triggering? So it's not a news anymore. Bye bye.